قومی ہمدردی، اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ تو ایز یوزول جس طرح پہلے ہم انٹروڈکشن رائٹر کا ایکسپلین کرتے ہیں اسی طرح سے میں ریڈ کرنا شروع کر رہی ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی، پیج نمبر 23، پیج نمبر 23۔ ان کی وفات ہوئی 1837 میں، ان کی ولادت ہوئی 1837 میں اور انہوں نے پھر وفات پائی 1914 میں۔ مزید میں ریڈ کر رہی ہوں۔ الطاف حسین نام، حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعرے کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رود، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ شمس العلماء میں آپ کو پہلے چیپٹرز میں بھی لکھوا چکی ہوں، علماء کا سورج، اور اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھیے 1 2 3 4 لائن جو شروع کی لائنز آپ کاؤنٹ کرتے ہوئے ہیں تو 4 لائن میں ورڈ ہے آپ کا صحبت میسر آئی۔ صحبت کہتے ہیں کسی کی جیسے کہ ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور اس سے کچھ جو چیز سیکھتے ہیں، تو جو کمپنی ہوتی ہے نا، اس کی کمپنی میں رہنا، وہ کمپنیٹ جس سے ہم ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے صحبت، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ میسر کا مطلب ہے، میسر مطلب کہ ہمیں حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، میسر کا مطلب ہے حاصل ہونا۔ اچھا، اس کے بعد جہاں پہ آپ نے میسر کو انڈر لائن کیا ہے اس کی نیکسٹ لائن میں ورڈ ہے کتب۔ کتاب کی جمع ہے کتب، ٹھیک ہے۔ اس کی نیکسٹ لائن میں ورڈ ہے تراجم۔ ترجمے کی جمع ہے تراجم، صحیح۔ کتاب کی جمع کتب، اور یہاں پہ ترجمے کی جمع تراجم کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تراجم کے آگے ہی ایک ورڈ ہے نظر ثانی۔ نظر ثانی کا مطلب ہے ری کنسیڈر کرنا کسی چیز کو، مطلب کہ اس پر ایک نظر ڈالنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ نظر ثانی کا مطلب ہے دوبارہ نظر ڈالنا۔ اور یہاں پر ایک ورڈ ہے نظر ثانی سے ہی آگے درستی۔ درستی کا مطلب ہے کریکشن، یعنی کہ صحیح کرنا۔ درستی کا مطلب ہے صحیح کرنا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ورڈ ہے جہاں پہ آپ نے درستی کو انڈر لائن کیا تھا اس کی سیکنڈ لائن میں ورڈ ہے موضوعاتی۔ دیکھیے موضوعاتی کا مطلب ہے بلکہ آپ پورا موضوعاتی مشاعروں، یہ آپ پورا انڈر لائن کر لیجئے، میں اس کے میننگ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ دیکھیں موضوع کا مطلب ہے کوئی عنوان یا کوئی موضوع، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ موضوعاتی مشاعروں کی جو ورڈ لیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کسی خاص عنوان یا موضوع پر شاعری کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے پورے آپ میننگ لکھیں گے موضوعاتی مشاعروں یعنی کہ کسی خاص عنوان یا موضوع پر شاعری کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ موضوع کی جمع، اسی کے جہاں پہ آپ نے موضوعاتی مشاعروں کو انڈر لائن کیا ہے اسی کے آگے ایک ورڈ ہے موضوعات، یعنی کہ موضوع کی جمع موضوعات آ رہا ہے، یعنی کہ عنوانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں پہ
और ऐसा कोई वर्ड नहीं है। हाँ, तो अब मैं आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। देखिए, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जिनका नाम अल्ताफ हुसैन था, क्योंकि वो शायर भी थे, तो उनका तखल्लुस जो था वो हाली था, और खिताब उनका था शम्सुल उलमा। तखल्लुस वो होता है जो शायर शायरी में अपने नाम के बजाय लगाते हैं, छोटा सा एक नाम होता है, उसको कहते हैं। और शम्सुल उलमा जो उनका खिताब था, खिताब उसे कहते हैं जो किसी अच्छे काम की वजह से हुकूमत कोई नाम अता करती है, उसको खिताब कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको उनके नेम का सारा डिटेल बता दिया। वालिद के नाम उनका था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी था। पानीपत में वो इंडिया में पैदा हुए थे। पहले आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर आपने फ़ारसी और अरबी की तालीम पाई, यानी कि इन 3 ज़बानों पे आपको मुकम्मल अबूर हासिल था, फ़ारसी, अरबी और उर्दू। ठीक है, उसके बाद जब आप 17 बरस के हुए तो आपकी शादी हो गई। फिर आप दिल्ली चले गए शादी के बाद। फिर वहाँ पर आपने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता, जो कि दोनों शायर हैं, उनकी आपको सोहबत मुयस्सर आई, यानी कि आप उनके साथ आपने उठना बैठना शुरू कर दिया, जान पहचान हो गई, तो उनसे वो शायरी भी उनको काफ़ी हद तक आ गई। उसके बाद फिर आपने अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ का आगाज़ किया, तो आपने सबसे पहले लाहौर में आया। उसके बाद वहाँ पंजाब बुक डिपो है, वहाँ पर कोई लाइब्रेरी थी बुक्स की, तो वहाँ पर मुलाजमत इख्तियार की। वहाँ पे उन्होंने कुतुब के उर्दू तराजम पर नज़रसानी और दुरुस्ती का काम किया। वहाँ पे जो किताबें होती थी वहाँ उस डिपो में बुक्स इंग्लिश की, तो वहाँ उसमें जो मुसलमानों के लिए तर्जुमा किया जाता था कि वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, तो उनके जो तर्जुमे होते थे उर्दू में, क्योंकि उनको मुकम्मल दस्तरस हासिल थी, तो उनका काम ये था कि वो इंग्लिश के जो उर्दू तर्जुमे हुआ करते थे उनको बाकायदा रीड किया करते थे, और जो उसमें करेक्शन करनी होती थी वो कर दिया करते थे, जिससे उनको इंग्लिश में भी काफ़ी हद तक उनको इंग्लिश का लिटरेचर समझ में आने लगा, और इंग्लिश में भी उनको काफ़ी दस्तरस हासिल हो गई, क्योंकि वो करेक्शन जब करते थे तो उनको इंग्लिश से भी उनका वास्ता पड़ता था। उसके बाद फिर आपने यही लाहौर में ही रहते हुए उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, वो जो कि शायर भी हैं और एक मुसन्निफ भी हैं, उनके साथ मिलकर आपने फिर मौज़ूआती मुशायरे की बुनियाद रखी। देखिए, मौज़ूआती मुशायरा क्या होता है? इनसे पहले यानी कि मौलाना अल्ताफ हुसैन से पहले जो शायरी हुआ करती थी उसका कोई मौजू नहीं होता था। ठीक है, बस एक जैसे कोई अपनी एक फीलिंग्स होती है वो पोइट्री के जरिए से बयान कर दिया जाता था। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर एक बाकायदा मौज़ूआती मुशायरे का आगाज़ किया। मौज़ूआती मुशायरा ये होता है कि अब आप एक पोइट्री कर रहे हो, आप वो एक गज़ल है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, बस उसमें आप अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करे जा रहे हो, अपने गम को एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन उसका कोई मौजू नहीं है। ठीक है, अब एक मौज़ूआती जो मुशायरा होता है, एक मिसाल के तौर पर मैं एक ले लेती हूँ, हुब्बुल वतनी। अब ये हुब्बुल वतनी जो हमें एक सेंट्रल आइडिया मिल गया है कि हमने पोइट्री जो है अपनी वतन के लिए हमें क्या करना चाहिए, उससे मोहब्बत करने का क्या तकाजा है, तो हमें एक मौजू मिल गया कि हमने इस उन्वान की बिना पर ये सारी की सारी जो है शायरी लिखनी है। तो इस तरह जो मौज़ूआती मुशायरा होता है ना, ये उन्होंने उसकी बुनियाद इनके साथ मिलकर डाली, जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इन्होंने इस मौज़ूआती शायरी के बाद आपने बरखा रुत नज़म लिखी, फिर रहमो इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद जैसे उन्वान से नज़में लिखी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हाली की और भी तसानीफ के बारे में जिक्र होता है। हाली ने सर सैयद की मशहूर तहरीर पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखा। ये इनका जो ये मुसद्दस है, ये मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है, जिसका नाम है मद्दो जज़र इस्लाम। इसमें उन्होंने सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक उन्होंने मुसलमानों के लिए चलाई थी, मुसलमानों की इल्मो आगही और उनकी तरबियत करने के लिए, तो उस पर एक पूरी बाकायदा एक नज़म लिखी थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था मद्दो जज़र इस्लाम, जो कि मुसद्दस हाली के नाम से भी जानी जाती है, जो कि उनकी बहुत ही मशहूर जो है उनकी परफॉर्मेंस रह चुकी है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने
اور کتابیں لکھی جس میں حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حال ہی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ یہاں پہ میں ان بکس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی چلوں۔ دیکھیے جو ان کی فرسٹ بک یہاں پر مینشن ہے حیات سعدی، حیات سعدی جو ہے وہ بک انہوں نے، آپ نے اکثر حکایات پڑھی ہوں گی شیخ سعدی کی، ان کی کافی ساری حکایات ہیں جو کہ ہمارے پڑھنے میں آتی ہے، جن کا پورا نام ہے شیخ سعدی شیرازی، ان کی حالات زندگی کے بارے میں، ان کی تمام حکایات کے بارے میں اس حیات سعدی جو ان کی بک ہے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر مقدمہ شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری بک میں انہوں نے اپنے تمام جتنا بھی ان کا ایک اسٹف تھا شعر و شاعری کا، وہ سارا کا سارا انہوں نے اس بک کے اندر کنورٹ کر دیا تھا، جتنا بھی ان کا شعر شاعری کا اسٹف تھا، جس کا نام انہوں نے اس بک کو دیا ہے مقدمہ شعر و شاعری، یعنی کہ حال ہی کی جتنی بھی شعر و شاعری ہے وہ آپ کو اس بک میں پرووائڈیڈ ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر یہاں پر نیکسٹ بک جو مینشن ہے وہ ہے یادگار غالب۔ یادگار غالب ہے، یہ بک انہوں نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی شعر و شاعری پر، ان کی حالات زندگی پر ایک کمپلیٹ بک لکھی ہے، تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب سے ریلیٹ کرتی ہے یہ بک۔ اس کے بعد پھر یہاں پر نیکسٹ بک جو ہے ہماری وہ ہے حیات جاوید۔ حیات جاوید کی 2 جلد ہے، یعنی کہ یہ جو بک ہے یہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلے پارٹ میں انہوں نے یہ جو بک بیسیکلی جو ریلیٹ کرتی ہے یہ ریلیٹڈ ہے سر سید احمد خان سے، تو انہوں نے پہلے بک جو ان کی جلد تھی، پہلا پارٹ جو تھا اس میں انہوں نے ان کی بیسک جو زندگی تھی ان کی اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل سے لکھا ہے، اور جو دوسری جلد تھی انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دی ہیں، جو مسلمانوں کی تحریک چلائی ہے علم و آگاہی کے لیے، اصلاحی کام جو انہوں نے کیا ہے اس سب کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ان کی کوئی بک نہیں ہے، اور یہ جتنی بک کا میں نے آپ کو بتایا یہ ان کی سب اہم تصانیف میں سے ہیں۔ تو یہ ساری بکس یہاں پر میں نے مینشن کر دی ہیں وتھ ڈیٹیل انٹروڈکشن۔ تو اب اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ورڈ اور ایکسپلینیشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم اپنا چیپٹر شروع کرتے ہیں نیکسٹ آڈیو میں۔ تو اس آڈیو میں ہم اپنا چیپٹر شروع کریں گے جس کا نام ہے قومی ہمدردی، جو کہ پیج نمبر 25 پر ہے، 24 پر ہے۔ فرسٹ پیراگراف میں ریڈ کر رہی ہوں۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا خواہ بے ارادہ، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ یہاں پہ یہ فرسٹ پیراگراف میں ریڈ کر چکی ہوں، تو میں اس کے سب سے پہلے ورڈز ایکسپلین کر دیتی ہوں جو ڈیفیکلٹ ہیں۔ تو فرسٹ لائن میں ورڈ ہے مرکب۔ مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو، 2 سے زیادہ جو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اس کی آپ میننگ لکھ لیجئے کمپاؤنڈ، جو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں نیکسٹ لائن جو ہماری سیکنڈ لائن ہے اس میں ورڈ ہے اشتراک۔ اشتراک کا مطلب ہے ملنا، ملنا / شامل ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تھرڈ لائن میں ورڈ ہے خواہ۔ خواہ کا مطلب ہے چاہے۔ اچھا اس کے بعد اور ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے جو کہ ایکسپلین کیا جائے، تو میں یہ پیراگراف ایکسپلین کرتی چلوں۔ تو یہاں پہ مصنف نے ہمدردی ورڈ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہمدردی ورڈ بیسکلی ہے کیا۔ دیکھیے ہمدردی جو فارسی کے 2 الفاظ ہیں ہم اور درد، ان دونوں سے مل کر کمپاؤنڈ ورڈ ہے یہ 2 الفاظوں کا۔ تو اس میں ہم کا مطلب ہے کہ جو ہے ہم کا مطلب یعنی کہ ہمارے لیے یوز ہوتا ہے یا ایسے انسان کے لیے جو ایک سے زیادہ پرسن جس میں شامل ہوں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم یعنی کہ ہم سے ریلیٹڈ ہمارے جو ہمارے ساتھ اور لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یہ صرف میں یا تم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہم کی بات ہو رہی ہے۔
उसके बाद फिर यहाँ पे दर्द बताया जा रहा है, दर्द के मायने दुख या दर्द के होते हैं। तो यहाँ पे हमदर्दी का जो लफ्ज बेसिकली मीनिंग जो देता है वो ये कि वो दर्द जिसमें एक से ज्यादा अफराद जो है वो शरीक हों उसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ हमदर्दी जो है ऐसा नहीं है कि एक लिटरली दर्द हो रहा है, जैसे कि किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो वो वही दर्द लिटरली उसके सामने वाले के भी होगा, ऐसा दर्द नहीं। अब देखिए यहाँ से जो मीनिंग लिए जाएंगे वो ये कि हमदर्दी का मतलब है कि एक इंसान जो है वो बीमार है, अब दूसरा शख्स जो है वो उसकी दवा दारू कर रहा है, उसकी तीमारदारी कर रहा है, तो ये मतलब कि जो एक दूसरा इंसान है जो उसकी दवा दारू कर रहा है तो वो उसके दर्द में शरीक है। किस तरह से शरीक है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, तो यानी कि उसके अंदर हमदर्दी का जज्बा है, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है। तो हमदर्दी के मायने यहाँ पर ये लिए जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है यानी कि सेकंड पैराग्राफ, अगर ये बात सच है तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे के हमदर्दी के जिम्मेदार हैं। हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हमजिनसों से मदद देने का इस्तेहकाक रखता है। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक है जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि उन भाइयों की औलाद में इस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। बेशक जब तक के बाप के खून का कतरा औलाद के रगो पे में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड लाइन में वर्ड है हम जिन्सों। हम जिन्सों का मतलब है साथियों। अच्छा, उसके बाद फिर इसी की नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड है इस्तेहकाक। इस्तेहकाक का मतलब है हक रखना। उसके बाद लास्ट जहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म है तो वहां पर एक वर्ड है रगोपे। पैराग्राफ की लास्ट लाइन में वर्ड है रगोपे। रगोपे मतलब जिस्म। देखिए हमारा जो जिस्म है पूरी बॉडी वो स्ट्रक्चर किस चीज से बगे होती है, उसके अंदर खून जा रहा होता है, उसी से मिलके तो हमारा बॉडी का सिस्टम चल रहा है, तो इसीलिए जिस्म का रगोपे भी कहा जाता है। ठीक है, तो रगोपे की मीनिंग जिस्म लिख लीजिए आप लोग। मुनक़ता, मुनक़ता का मतलब है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर सारे वर्ड्स हो गए, तो मैं आपको ये एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है, मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये बात वाकई सच है कि इंसान के अंदर नेचुरली जो है वो हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है कि इंसान एक दूसरे इंसान को तकलीफ में देखता है तो ऑलरेडी जो है वो उसको बड़े बुरे से उसके बारे में फील कर रहा होता है, उसके बारे में दर्द महसूस कर रहा होता है, उसके लिए उसके हमदर्दी के जज्बात जो है वो उभरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है यहाँ पर कि भाई को भाई से ताल्लुक, यानी कि कौन मना कर सकता है कि आपका भाई है तो आपका अगर दूसरा भाई आपका अगर किसी तकलीफ में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उससे हमदर्दी ना हो, उसका एहसास ना हो। बल्कि जब तक आपके बाप का खून यानी कि आपके फादर का खून आपके जिस्म में है, जब तक आपको अपने भाई की जरूर जो है वो हमदर्दी आएगी। तो जाहिर सी बात है अगर भाई भाई का एहसास कर रहा है तो ये पूरी दुनिया का कारखाना इसी तरह चलता है कि लोग जो है आपस में बहन भाई रिश्तेदार एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं और इसी तरह फिर माशरा जो है वो इस्तेहकाम पाता है। तीसरा पैराग्राफ मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ। तीसरा पैराग्राफ पेज नंबर 25 पर है। हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनके लिए ग़िज़ा बहम पहुँचाना, ताबा मक़दूर उनको दुश्मन के हमले से बचाना, सब जानवरों की आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है। जंगली बत्तखों का खोल जब किसी खेत में उतरता है तो वहाँ किसी तरह का गुटका नहीं पाता तो सबके सब एक सब बांध कर दाना चुगते हैं, मगर उनमें से एक बत्तख नौबत बा नौबत अपनी हमजिनसों की चौकसी करती है और जब तक पहरा देती रहती है एक दाना नहीं खाती। चूटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता बल्कि उसी वक्त अपने हमजिनसों को खबर देता है और थोड़ी सी देर में लाखों चूंटों को वहां जमा कर देता है। इस तरह और भी मिसालें पाई जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पर सेकंड लाइन में वर्ड है ग़िज़ा बहिम पहुंचाना। ग़िज़ा बहिम का मतलब है भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसी के आगे ही वर्ड है ताबा मक़दूर, जहां तक मुमकिन हो सके। ताबा मक़दूर यानी ताबा मक़दूर का मतलब है जहां तक मुमकिन हो सके। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर ये थर्ड लाइन में वर्ड है आम खसलत। खसलत का मतलब है आदत, ठीक है। अच्छा, उसकी नेक्स्ट लाइन में वर्ड है खुटका। खुटका का मतलब है खतरा। अच्छा, यहाँ पर ये सफ के मायने लिख लीजिए आप नेक्स्ट लाइन में, जहाँ खुटका आपने अंडरलाइन किया उसकी नेक्स्ट लाइन में वर्ड है सफ। सफ का मतलब है लाइन, यानी कतार लगाना, जिसे कहते हैं ना लाइन बना के चलना या कतार, उसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसी जहाँ सफ आपने अंडरलाइन किया उसी के आगे एक वर्ड है नौबत बा नौबत। नौबत बा नौबत का मतलब है बारी बारी। अच्छा, उसकी नेक्स्ट लाइन में वर्ड है चौकसी। चौकसी का मतलब है पहरेदारी। अच्छा, उसकी नेक्स्ट लाइन में वर्ड है तन परवरी। तन परवरी का मतलब है अपना पेट पालना। उसकी नेक्स्ट लाइन में वर्ड है हम जिन्सों। हम जिन्सों का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ साथियों, यानी कि एक ही कैटेगरी का, जो जैसे इंसानों की एक कैटेगरी होती है उसमें सिर्फ इंसान ही पाए जाते हैं, इस तरह से जानवरों की एक कैटेगरी होती है जिसमें चूंटा है, चूंटे की कैटेगरी में सिर्फ चूंटे चूंटे ही आते हैं, बत्तखों की कैटेगरी में सिर्फ बत्तख बत्तख ही आते हैं। इसको कहते हैं कैटेगरी, जो किसी चीज को कैटेगराइज करता है उसको हम जिन्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं, थर्ड पैराग्राफ को। तो यहाँ पे मुसन्निफ ने इंसानों के हमदर्दी के साथ साथ जानवरों की हमदर्दी का जिक्र भी किया है कि जिस तरह से इंसानों के अंदर हमदर्दी पाई जाती है एक दूसरे के लिए, तो इसी तरह से जानवर जो है वो भी आपस में एक दूसरे के औलाद के साथ साथ एक दूसरे के भी हमदर्द होते हैं। जिस तरह से जानवर के जो बच्चे होते हैं वो उनकी परवरिश करते हैं और उस वक्त तक उनकी हिफाजत करते हैं जहां तक उनसे मुमकिन हो सकता है, उनको हमलों से बचाते हैं, उनका जो है पेट पालते हैं, किस तरह से दाना चुग चुग कर लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो इसी तरह से उनके बच्चों में, उनके अंदर अगर हमदर्दी ना हो तो उनके बच्चे जो है वो नरिश ना कर सके बल्कि वो मर जाए। तो इस तरह से ये जो जानवरों में भी ये सर्कल चलता है कि एक दूसरे की हमदर्दी करते हैं और अपने जो उनकी एक जानवरों की दुनिया होती है उसमें वो रह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर बताया जा रहा है यहाँ पे बत्तखों के बारे में कि बत्तख जैसे मिसाल दी जा रही है हमदर्दी की कि बत्तख जब जा रहा होता है बत्तखों का ग्रुप, तो वो एक लाइन बनाकर चलता है। तो जैसे ही वो लोग देखते हैं कि कहीं खाना है तो उसमें से जो है ना सारी बत्तखें खाना खाने लग जाती हैं और उसमें से एक एक करके बत्तखों की बारी आती रहती है जो सब जगह पहरा देती है कि जैसे किसी हमले का खतरा हो तो मैं सबको होशियार कर दूं और सबकी जान बच जाए। तो इसे ये किस बिना पे कर रही है, हमदर्दी का जज्बा, क्योंकि सबके लिए हमदर्दी का जज्बा वो रखते हैं तो इसलिए एक दूसरे का ख्याल करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ चूंटे का जिक्र है कि चूंटा, आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक चूंटा खाना देखता है तो वो और बहुत सारे चूंटों को बुला के ले आता है, तो वो फिर सब जो है मिलके खाना अपने अपने जगहों पे जहाँ पे वो रहते हैं वो लेके जा रहे होते हैं। तो ये सब किस बिना पे हो रहा है, ये सब कुछ हमदर्दी की बिना पर हो रहा है कि वो लोग आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से गुजार पा रहे हैं और अपनी ग़िज़ा जो है वो भी उनको मुयस्सर हो रही है। किस वजह से, क्योंकि वो एक दूसरे से हमदर्दी करते हैं और इस हमदर्दी की वजह से वो एक दूसरे का साथ देते हैं और उनकी अपनी अपनी जानों की हिफाजत करते हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट ऑडियो में इंशाल्लाह फोर्थ पैराग्राफ से शुरू करेंगे।